Good morning, students. So, as we are discussing chapter number 5 of class 10, that is arithmetic progression. In this chapter, we have started exercise 5.2, and in this exercise, we have completed up to question number 17. In this video, we will start question number 18. So, formula of calculating nth term of an AP is an equals to a plus n minus 1 multiplied by d, or nth term we also say that is general term. Okay, so question number 18 is the sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and sum of the sixth and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. So in the question it is given that the sum of the fourth term and eighth term is equals to 24. जो फोर्थ टर्म है और जो एट्थ टर्म है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं सो कितना आता है, दैट इज इक्वल्स टू 24. एंड अगर मैं सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म को ऐड करता हूं सो दैट इज इक्वल्स टू 44. सो वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट three terms of the AP. Okay, so we don't know what is the first term of the AP and what is the common difference, so we can assume that let the common difference is D and the first term is A of the AP. ओके, तो मैंने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D मान लिया और फर्स्ट टर्म क्या मान लिया, A मान लिया. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन okay, so in first scenario it is saying A4 fourth term plus eighth term A8 is equals to 24. okay, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 24. ओके, सो वी कैन राइट A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म क्या मानी है ए और कॉमन डिफरेंस क्या माना है डी. ओके, प्लस 8 को लिख सकता हूँ ए प्लस 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, दैट इज इक्वल टू 24. ये कहाँ से आया, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ calculating nth term of an AP. okay, now A and A, that is equals to 2A, this A and this A, and 4 minus 1 that is 3 multiply by D, 3D, plus 8 minus 1 7 multiply by D, that is equals to 7D. okay, equals to 24. okay, we can also write 2A 3D plus 7D is equals to 10D equals to 24. or we can also write take 2 common from the equation, so 2 is common, so A plus 5D, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ A बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 5 जा 10, 5D equals to 24. here 2 has multiplication sign, so in RHS it will go with division sign. A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 2. यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर क्या इसमें चला गया डिवाइड में, 12 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा. ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. सो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ इन सेकेंड सिनेरियो इट इज सेइंग sixth term plus eighth term, sorry 10th term, not eighth term in the first scenario, sixth term plus 10th term is equals to 44. दोनों का सम कितना है 44. सो A6 प्लस A10
इज इक्वल्स टू 44. Okay, again we will use formula of calculating nth term. So a plus n कितना है यहाँ पे 6 माइनस 1 d हमने माना है 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, और a प्लस यहाँ पे n कितना है 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू कितना है हमारा 44. ओके, नाउ a और a कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a, 6 माइनस 1 5 मल्टीप्लाई बाई डी 5d. सो a 2a प्लस 5d इधर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 माइनस 1 9 प्लस 9d इक्वल्स टू 44. ओके, here also we can write 2a plus 5 and 9 14d equals to 44. Here also we can take 2 common, so 2 common, then a plus 7d is remaining. यहाँ से 2 कॉमन लेंगे a बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 7 जा 14, so यहाँ पे 7d बचेंगे. ओके, so we can write 2a plus 7d equals to 44 है, 44 लिख दिया. so a plus 7d is equals to 44 अपॉन 2. सेम यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. सो a प्लस 7d equals to 22. So this is our second equation. So as we can see, now we got a pair of linear equations in two variables. देखो यहाँ पे भी a और d हमारा वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पर भी a और d हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स हैं. ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. Okay, so we can use any method of solving pair of linear equations in two variables. कोई मेथड यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. आई एम यूजिंग elimination method. Okay, so in elimination method we subtract one equation from the second equation. Okay, any one equation. On subtracting equation 2 from equation 1. Okay, so first equation थी मेरी, that is a plus 5d equals to 12. so a plus 5d equals to 12. और सेकेंड इक्वेशन है मेरी a plus 7d equals to 22. मैंने आपसे कहा था हम साइन चेंज कर देते हैं और किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में कैसा है, सेम है, 1 और 1. मैंने साइन चेंज करके एक को +1 कर दिया, एक को -1 कर दिया. ओके, सो माइनस ए इज कैंसल्ड बाई प्लस ए. दिस इज 5d, दिस इज -7d. सो -2d इज रिमेनिंग, माइनस नेगेटिव ज़्यादा है यहाँ पर, पॉजिटिव कम है, तो -2d रिमेनिंग. यहाँ पे देखिए -22 है और प्लस के 12 है, सो -10 इज रिमेनिंग. माइनस इज कैंसल्ड बाई -d इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2. यहाँ मल्टीप्लाई में था 2, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2 5 जा 10. सो आई गॉट वैल्यू ऑफ d दैट इज इक्वल्स टू 5. ओके, क्या वैल्यू आ गई d की, यहाँ पर 5 आ गई वैल्यू. नाउ वी कैन पुट d इक्वल्स टू 5 इन एनी वन इक्वेशन, देन वी गेट वैल्यू ऑफ a. सो ऑन पुटिंग d equals to 5 in equation 1. Okay, so first equation is a plus 5d equals to 12. so a plus 5 multiply by 5 equals to 12. so a plus 25 equals to 12. a equals to 12 minus 25, यहाँ पे प्लस के हैं, 25 देखो माइनस के हो जाएंगे. सो a इज इक्वल्स टू -30. ओके,
सो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई -13 और डी की वैल्यू मेरे पास आ गई +5. नाउ वी हैव ए इक्वल्स टू -13 एंड डी इक्वल्स टू 5. So we can calculate first three terms of the AP. Okay, so first three terms of the AP are, first term is -13, second term -13 plus 5 कितना आएगा -8, सेकेंड टर्म इज -8, थर्ड टर्म इज -8 प्लस 5 दैट इज -3. मैंने आपसे कहा था कि हम प्रीसीडिंग टर्म में डी ऐड करते जाते हैं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिलती जाती है किसी भी एपी की. ओके, सो फर्स्ट थ्री टर्म्स आर -13, -8 एंड -3. सो क्वेश्चन नंबर 19 इज, आशुतोष started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? Okay, so क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1995 में आशुतोष ने वर्क स्टार्ट किया था और उस टाइम पे जो उसकी सैलरी थी दैट इज इक्वल टू 5,000 रुपीज़. ओके, आफ्टर दैट उसको जो इंक्रीजमेंट मिल रहा है एवरी ईयर दैट इज इक्वल टू 200 रुपीज़ ओनली. ओके, कितना मिल रहा है इंक्रीमेंट? 200 रुपये मिल रहा है एवरी ईयर. ओके, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज़ 7,000? हियर इट इज आस्किंग कि किस ईयर में उसकी जो इनकम है वो 7,000 हो जाएगी. ओके, नाउ इफ वी सी द क्वेश्चन इट इज फॉर बीइंग एन एपी. हाउ? सी, 1995 में उसकी सैलरी कितनी थी? 5,000 रुपये. 1996 में 200 रुपये, इसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा? 5,200 रुपये. उसके बाद फिर 200 बढ़ेगी नेक्स्ट ईयर में, तो फिर 200 ऐड करेंगे 5,200 में, तो 5,400. तो हर साल उसकी कितनी बढ़ रही है? 200 रुपये. तो जब एक कांस्टेंट अमाउंट प्रीसीडिंग टर्म में बढ़ता है और हमको नेक्स्ट टर्म मिलती है तो क्या फॉर्म करते हैं वो? दैट इज फॉर्मिंग एपी. सो हियर ऑल्सो इट इज फॉर्मिंग एपी. और लास्ट में सैलरी कितनी हो रही है उसकी? 7,000 रुपये. इट मीन्स दिस इज nth टर्म और वी कैन से लास्ट टर्म. सो ये हमारा क्या हो जाएगा? an हो जाएगा. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. सो आशुतोष received annual salary in year 1995, 1996, 1997 dash 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 rupees equals to, in 1995 में कितनी है उसकी सैलरी? 5,000. ओके, 6 में 5,000 में 200 ऐड हो जाएंगे एंड 7 में 5,200 में 200 और हो जाएंगे 5,400 डैश 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 रिस्पेक्टिवली. ओके, मीन्स 1995 में 5,000, 1996 में 5,200, 1997 में 5,400. सेम 1998 में कितना हो जाएगा? 200 इसमें और ऐड कर देंगे 5,600. ओके, सो इट इज फॉर्मिंग एन एपी. सो एपी इज इक्वल्स टू 5,000, 5,200, 5,400 डैश 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 और लास्ट उसकी सैलरी कितनी हो रही है? दैट इज 7,000 रुपीज़. ओके, लास्ट में क्या लिख देंगे? 7,000. ओके, नाउ एज इक्वल्स टू, हेयर एज इक्वल्स टू 5,000 हो जाएगा. डी कितना हो जाएगा? 5,200 माइनस 5,000. सो डी इज इक्वल्स टू 200.
और लास्ट में सैलरी कितनी हो रही है उसकी 7,000 रुपीज़। सो ए एन इक्वल्स टू 7,000 कितने टाइम में होगा, इट मीन्स इट इज आस्किंग फॉर एन, सो एन वी हैव टू कैलकुलेट। Okay, so we know the formula of calculating nth term of an AP, that is an equals to a plus n minus 1 multiply by d. Okay, so we know that an is equals to a plus n minus 1 multiply by d. Now on putting the values, an equals to 7,000, age 5,000, and we have to calculate, so n minus 1, d is equals to 200, so 7,000 माइनस ये प्लस में है जाके माइनस में हो जाएंगे, माइनस 5,000 इक्वल्स टू n minus 1 multiply by d, that is 200 rupees. Okay, so 7,000 minus 5,000, remaining amount is 2,000 only. n minus 1 multiply by 200. Okay, so 2,000 upon 200, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था इसलिए यहाँ पे किसमें क्या डिवाइड में, जीरोज कैंसिल्ड बाई जीरो एंड 2 1 जा 2, सो 10 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. ओके, एंड 10 प्लस 1 इक्वल्स टू n, ये माइनस में था एक प्लस में हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 11. ओके, सो हमारे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज इक्वल्स टू 11. सो इन 11 ईयर्स हिज सैलरी became equals to 7,000 rupees. Okay, so in 11 years his salary became rupees 7,000. Okay, so one question is remaining in the exercise. You have to solve that question by yourself.